ठीक है, सभी साथियों को सादर नमस्ते। वापस से हम आते हैं इस सेशन में। और अभी हम मॉक इंटरव्यू लें इससे पहले कुछ साथियों का विशेष आग्रह है कि मॉक इंटरव्यू में एक बड़ा पार्ट होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। और सबसे पहले हम हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन एक्सपर्ट रेखा कुमारी को आमंत्रित करते हैं। प्लीज़ आइए और आप अपना बढ़िया से परिचय दीजिए। इसके Okay. बाद ईशा कपिला, देन Can I can I audible, sir? ये Can I audible? हाँ, यस यू आर ऑडिबल। Good evening, sir. Good evening to all of you. First of all, I would like to say thank you. You giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Rekha. I belong to Shahido Kasar, Jajjar, Haryana. About my education, I have done my 10th and 12th from HSC board in 2010 and 12th respectively. After that, I have done my ये DED भाई course from HBSC board in 13 to 15. After doing कॉफ़ी this आधा course, गिलास। I have a 6 month teaching experience as a pupil teacher in government school in my in-laws village. I also shared my special achievements in my school time. At 10th level, I got scholarship in Dr. B.R. Ambedkar Scholarship Meritorious Scheme, and I got second position in Mehndi competition and science exhibition in block level. And I got married in 2015. I belong to a joint family and I have two lovely kids. My husband is in ITBP, currently working as a constable in Chhattisgarh. I proud of my husband because he is engaged in the service for our country, and I also serve our country to teaching its children. And my hobbies are cooking, house managing, and Sudoku. Also, my strength are I'm hardworking and patientful person. My weakness is I'm a talkative person, and I my short term goal is I want to become a primary teacher in KV Sangathan, and my long term goal is I want to become a principal in KV Sangathan. That's all about me, sir. Thank you so much. Okay, after become principal, you will be selected as assistant commissioner, सर आपका and माइक म्यूट है। अच्छा, okay, okay. After become principal, you may be selected as a assistant commissioner, and I am very glad when I will work under you. Okay. तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने को इसमें संतुलन बनाना है कि वो एकदम हम जब बोलें तो थोड़ा सा कहीं कहीं ब्रेक देना हो तो ज़रूरी है, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस भी बीच बीच में कहीं कुछ स्पेशल स्टेशन में रुकती है। Okay, स्पीड sir. अप हो गई थोड़ा। ओके ओके, यस ईशा कपिला, डू यू वांट टू गिव योर इंट्रोडक्शन? यस सर, आई वांट टू गिव माय यस, इंट्रोडक्शन। ओके। सर इसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन ले लेना। हाँ, आपका ले लेंगे। ओके, निशा शर्मा का लेंगे इसके गुड बाद। चलिए, यस, बोलिए। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ ईशा कपिला। आई एम बिलोंग presently residing in Uttar Pradesh, Ghaziabad. I have completed my schooling from DAV Pushpanjali, Delhi only. I have done the ET course from SCRT in 2005. Along with that, I completed my BCom honors from Delhi University. Then I pursue my MCom from the HP University. Then I work in banking sector for 2 years. And later on, after my marriage, I need to drop my job. And then I moved to the education sector. I completed my UGC Net Commerce in 2014. After that, I pursue my B.Ed from Morton College, Gohana, which I completed in 2018. And since then, I have been working as a PGT Commerce in private schools only. And right now, also, I'm working in as a PGT Commerce in Raleigh International. My hobbies are playing Sudoku. I love to play Sudoku. I love the numbers also. And rest of my time, I love to talk with my father. He is a very knowledgeable person. I learned a lot from him during my lifetime. And my strength is being very dedicated and determined to do something. If I take up the challenges, I really like those. And apart from this, I am being a sports captain for the state volleyball team of my school for the 2 years, consecutive 2 years, 9, 10, 10. Thank you so much. ओके, अभी निशा मैडम, Sir, आपको 1 मिनट। यस सर। निशा मैडम जल्दी से आप बताइए, sir, फिर आप हमें कुछ जेंट्स का भी लेना है, नहीं तो लोग मुझे बोलने लग जाएंगे कि सर ओनली गर्ल्स को ही यस सामने सर। नहीं पूछते सर, मेरा रहते आज फर्स्ट गूगल मीट है। 2-3 दिन से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, तो आज पॉसिबल हो पाया है। एंड हैं। आई ओके फील वेरी मच ओके लकी ओके, कि आज प्लीज़ गूगल प्लीज़ मीट है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस। यस सर। Thank you, sir. I am delighted to introduce myself to you. My name is Nisha Devi. I belong to district Mandi, Himachal Pradesh. I did my schooling from a government school under HP Board of School Education, Dharamshala.
I did my graduation in medical science from HP University Shimla. Then I did my masters in biotechnology again from HP University Shimla. I did Bachelor of Science from HP University Shimla. My special achievements are I got merit listed in class 10th and class plus 2 by securing 88.8% marks in class 10th and 87.2% marks in class plus 2. I qualified state eligibility test in my very first attempt. Then I qualified state teachers eligibility test in first attempt. I qualified both CTET paper 1 and 2 in my first attempt. And I am feeling proud to tell you that I qualified this KBS PGT biology exam also in my first attempt. I have an experience of teaching as PGT biology for about 4 years in state and CBSE board schools. As PGT biology, I had privilege of mentoring and teaching young minds and nurturing their curiosity about the world. And throughout my career as a PGT biology teacher, I got positive feedback from my students and also from my peers, which helped me to refine my teaching methodologies over the time to provide best teaching experience to my students. I look forward to bring my skills and experience to Kendriya Vidyalaya Sangathan, and that's all about me. Okay, very good, very nice. Pradeep Sir- Verma ji, what you want to say? Do you want to give your Sir, introduction? कौन से क्रॉस क्वेश्चन मेरे इससे इंट्रोडक्शन से बन सकते हैं प्लीज इसके लिए भी मुझे गाइड करना. बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक सिंगल evening, sir. इंटरव्यू Good अलग evening. से अभी लेने वाला हूँ, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर. यस, प्रदीप जी बोलिए. हाँ सर, गुड इवनिंग सर. आवाज़ सर आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए. जी सर, धन्यवाद. सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है. मैं अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ. मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद बोर्ड से किया है सर. मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया है. मैंने अपना बीएड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया है तथा मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया है. और सर मैंने अभी हाल में ही 2023 का नेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया सर. और मैंने सीटेट एग्ज़ाम 2 बार सर दोनों पेपर में अटेम्प्ट किया है. मेरी हॉबी सर कुकिंग फूड है, प्लेइंग क्रिकेट है और सर डायरी राइटिंग है. माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्टी सर है. चलो अच्छी और बात सर है. सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए था इस पर. जल्दी कि सर बोलिए. मैंने बीए 2 बार सर किया है अलग अलग टाइम पे. तो सर दोनों दिखाना जरूरी है कि सर एक ही दिखाया जाए? यार ये कई बार आपने बोला, पिछले बार भी मैंने वही आंसर दिया था. आपका जो बीए दोनों एक साथ तो नहीं किया है ना? नहीं सर. आप जिस पोस्ट के लिए, सुन लो ध्यान से, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किया है उससे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो आप जी। ज़रूर दिखाएं. अदरवाइज़ जी। अगर वहाँ कहीं भी कंट्रोवर्सी अगर ना हो जाए, 2 कोर्स करना अगर अलाउ है, रूल समझ लीजिए पहले कि 2 कोर्स करना, 2 ग्रेजुएशन करना अगर अलाउ है एज पर रूल यूनिवर्सिटी के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पर ये 2 कोर्स करना अगर अलाउ नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, ये बात ध्यान देने की है, ठीक है ना? ओके, जी सर। मुझे बताइए अब नेक्स्ट सर, कैंडिडेट जो, मुझे अपना इंटरव्यू देना है सर. एक मिनट, एक तो डॉली मैडम दिखाई दे रही है और एक ये और कौन बोलना चाह रहा है भैया? मैं एक मैं हूँ सर सुधीर कुमार. एक सेकंड नाम सर. बोलो, अपना नाम. गौतम सुधीर कौन बोल रहे हो? जी सर. चलो भाई, एक जेंट्स और होने दो. गौतम जी आप बोलिए, उसके बाद 1 जेंट्स 1 लेडीज चलेगा, ठीक है ना? ओके. शुभ संध्या सर. हाँ यस. सर्वप्रथम मैं आप सभी महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लोगों के समक्ष मुझे मेरा परिचय देने का अवसर प्रदान किया गया. मेरा नाम सुधीर कुमार है. मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का निवासी हूं. मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड इलाहाबाद से उत्तीर्ण किया है. मैं अपनी बीए की परीक्षा 2012 में, एमए की परीक्षा 2018 में और बीएड की परीक्षा 2021 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या है, से उत्तीर्ण किया है. मैंने अपना सीटेट
2021 में उत्तीर्ण किया है। मैं नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण किया हूँ और मैं शांत स्वभाव का, धैर्यशाली और परिश्रमी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। मेरी रुचि अध्ययन, अध्यापन और कहानियाँ पढ़ने में है। धन्यवाद सर। बड़े अच्छी बात आपने बताई। आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ मैं। आप ये बताइए, आप क्रोध को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने बोला मैं शांत स्वभाव और धैर्य वाला हूँ, तो इस जी। पे आप कैसे कंट्रोल करते हैं बताइए। सर मेरा मतलब ऐसा बोलोगे तो पूछ सकते हैं ऐसे यार। जी जी अब क्योंकि आजकल यही तो सबसे बड़ी बात है, शांत स्वभाव का जी। होना और पेशेंस वाला होना। इट इज़ द चैलेंज इन टूडेज एज। जी जी तो अगर पूछ लिया आपसे कि भाई आप कैसे क्रोध को कंट्रोल करते हो, बताओ। चलो सोच लेना, बाद में बता देना, है ना। आपने बोला, दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। आपने बोला कहानियाँ पढ़ने में मेरी रुचि है, तो आप पिछली बार जी। आपने कब कौन सी कहानी पढ़ी थी, किस राइटर की पढ़ी थी, बताइए। मैंने सर प्रेमचंद जी की पढ़ी थी, बड़े भाई। कब पढ़ी थी ये? जी अभी करीब 1 हफ्ते पहले। इसके पहले आपने प्रेमचंद जी के अलावा और कौन कौन से कहानीकार की कहानियाँ पढ़ी है? मैंने सर चीफ की दावत पढ़ी है, भीष्म साहनी जी की। और बताओ। और सर कब लेके आओ छोटा दूसरा। यस। चीफ और तो मेरा यार शाम 6 बजे से खाना नहीं खाया है, आप लोगों के चक्कर में चाय पी के काम चला रहा हूँ। चलो बताओ। अभी जो आप बता रहे हो ना क्वेश्चन के आंसर, देखो यहाँ फंस जाओगे। इसलिए वही, अगर कहानी का बता रहे हो तो आपने जो चीफ की दावत और ये बड़े भाई बताइए, ऑलरेडी स्कूली सिलेबस में है। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे कहानीकार जो अलग तरह से अभी आधुनिक युग में फेमस हो रहे हैं। आप कुछ उन लोगों के बारे में बताइए, ठीक है ना। ओके जी चलो ठीक है। तो इस तरह की आपको स्टडी करके जाना है, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। क्रॉस क्वेश्चन अगर कर लेंगे, अभी मैंने क्रॉस क्वेश्चन तो किया ही नहीं है किसी से भी, ठीक है ना। सर मुझसे भी मेरी इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्रॉस क्वेश्चंस ओके कीजिए। ओके, करेंगे अभी पूछेंगे। अभी कुछ और लोगों को लेने दीजिए। अब और कौन है भाई अपना इंट्रोडक्शन के लिए, कौन सामने आ रहा है? इंट्रोडक्शन सेशन ये चल रहा है, बताइए। Sir, I want to introduce myself. हाँ, तो आप आइए थोड़ा अपने चेहरे के साथ में। डॉली मैडम का और इनका दोनों का ले लेंगे हमें ना, नेहा मुदगल एंड डॉली। यस, Okay, good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Neha Sharma. I was born in Alwar but entirely brought up in Delhi. I have completed my elementary education from SCRT Delhi. After that, I have completed my graduation from Hansraj College, Delhi. I have deep interest in teaching since my childhood. I used to help my younger siblings in their studies. I have been teaching since 2015. Apart from that, I love making crafts. Thank you, sir. ओके, आपने बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। आपने Yes, क्वालिफिकेशन। sir. I want to. सर एक क्वेश्चन हमारा सर है। 1 मिनट, देखो बीच में क्वेश्चन मत करो भाई, 1 बाय 1 है ना। अभी एक और डॉली मैडम कौन थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यस, Sir, हाँ। सर, ये मुझे एक आपसे मिनट, यही नेहा पूछना है मुदगल, कि आपको आप- कुछ और पूछना है? यस सर, मुझे पूछना है सर। आज मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ और मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं है जो मैं इसमें ऐड करूँ। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इंप्रेसिव कैसे बनाऊँ? नहीं, आप ये बताओ, आपने स्कूल लाइफ में कोई अचीवमेंट तो होगा आपका? सर ऐसा कोई अचीवमेंट्स नहीं है जिसे मैं ऐड कर पाऊँ। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है जो सर आप? मेरा बस ये है कि मैंने 12th क्लास में अपने स्कूल को टॉप किया था। तो ये तो आपका Should I add अचीवमेंट, ये तो आपका अचीवमेंट है, आपको इसको ऐड करना चाहिए, उसमें ऐड जरूर करना है, ठीक है ना। और Okay, sir. स्टूडेंट लाइफ में आपकी, आप कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में भाग लेती थी?
सर मैंने को करिकुलम मतलब हमारा मेरे गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें मेरे को ऐसी कोई को करिकुलम एक्टिविटीज कराई नहीं। अच्छा, ये सब होता है। गवर्नमेंट स्कूल में होता है सर, लेकिन मेरे स्कूल में कोई नहीं एक्टिविटी। चलो, वहाँ भारत स्काउट गाइड्स भी नहीं होगा, एनसीसी भी नहीं होगी? नहीं सर। चलो ठीक है, आप मुझे अपना वीडियो ठीक से रिकॉर्ड करके भेजना, मैं उसको और एक बार सुन। मैंने आज आपको भेजा भी अपना वीडियो। चलो, हो सकता है मुझे पहले नहीं मिले सर, आप बहुत लेट मिले मुझे। कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने देखा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और ये सब पड़े हुए हैं और मैं सबको देख नहीं पाता हूँ। मैं अभी आज रोज़ सोने से पहले कोशिश करता हूँ कि देख लूँ या उठने के बाद देख लूँ, तो क्योंकि इतने सारे है ना 700-800 मैसेज आ जाते हैं और उसमें मेरे खुद के असली मैसेज खो जाते हैं जो हमारे ऑफिसर के आए हैं, तो कभी कभी डांट पड़ जाती है कि भैया ये परोपकार के चक्कर में अपनी ड्यूटी भी भूल रहा है क्या, है ना। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा मैसेज करते हैं, कुछ तो भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैं जब गूगल मीट लूँ तो आप प्रश्न तब पूछ लिया करो और वीडियोस वगैरह जो भेजना है वो पहले भेज दिया करो। अब मैं सबके क्वेश्चन के आंसर रिटर्न में देना पॉसिबल नहीं होता, अभी जैसे मैं हूँ और आप लोग जुड़े हैं, तो जो भी क्वेश्चन एट ए टाइम आता है तो मैं तुरंत उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सर मुझे पूछना था कि मेरा इंट्रोडक्शन ठीक है या मुझे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? अभी नहीं, आपका इंट्रोडक्शन ठीक रहा, आप अपनी स्ट्रेंथ उसमें चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब देखो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ होती है, मानवीय गुण होते हैं। पेशेंस होता है, टॉलरेंस होता है, ऑनेस्टी होती है, जैसे एक मैडम ने टॉकेटिव बोला था वो होता है। आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है ये आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आई एम अ गुड मोटिवेटर, आई एम अ गुड काउंसलर, तो मैं इस तरीके से हाँ, यस, वेरी गुड। ये तो बहुत ज़रूरत है केवीएस को, कि टीचर के साथ साथ अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए डॉली मैडम, यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपका नाम भी डॉली है या और कुछ है? नो सर मेरा निकनेम डॉली है सर मेरा सर, लेकिन रियल नेम मेरा जरा प्रज्ञा भारद्वाज है सर। ओके ठीक है प्रज्ञा जी, बताइए। बाकी सब ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैन आई ऑडिबल सर? हाँ, यस सर, first of all I would like to thank you for giving this opportunity to introduce myself here sir. And sir, my name is Pragya Bharadwaj. I am from Uttar Pradesh. I have done my graduation and post graduation in drawing and painting from NGP Rohilkhand University in 2015. And sir, 2 times I have qualified UGC NET exams in 2019 and 2022. And sir, now I'm pursuing B.Ed from NT Degree Nangli. And sir, I have participated in many co-curricular activities and art competitions and exhibitions. And sir, I have gotten many prizes for these activities. Like I have participated in world's longest painting activity that was a Guinness World Record in 2016. And sir, I have won a special prize in district level poster competition in 2014. And sir, I am selected as a freelancer artist in Art Today online exhibition in 2012, sir. And sir, I always want to be a teacher and impart with my knowledge and guidance to my students. And sir, my positive attitude is my strength. I am self-motivated and hardworking girl, and I always try to improve myself. And the best one is I never give up. And sir, my hobbies are drawing, painting, crafts, and use of waste materials to create a new thing. That's all about me. Thank you so much, sir. आप कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं मैडम? ड्राइंग, पेंटिंग? सर आपका म्यूट हो गया है सर माइक। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे? आर्ट एजुकेशन सर। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छा दिया है, ठीक है ना। एज पर आर्ट एजुकेशन आपने बढ़िया दिया है। अभी आप बताइए, जेंट्स में कौन बात करना चाह रहा है भाई? सर मैं फतेहगढ़ से। सर हम फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से इंतजार अंसारी। हाँ, इनको एक क्वेश्चन पूछ लेने तो फिर आप। यस प्रदीप, हाँ पहले इनको पूछ लेने तो फिर राजा। बोलिए। राजा चाहती हूँ फर्रुखाबाद सर, मेरे इंट्रो से सर मेरे कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड सर मेरे सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस भी और
टीजीटी वेस्ट जैसे कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। मैडम तो हर please उस चीज़ इंट्रो पे से suggest हर कीजिए। इंट्रो पे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने जो अचीवमेंट बताए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपने कुछ अचीवमेंट बताया था ना अभी। यस सर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है सर, हाँ। फ्रीलांसर आर्टिस्ट है एंड पोस्टर कंपटीशन। तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है इस पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये अचीवमेंट कैसे किया, ठीक है ना। तब आप उसको थोड़ा सा अच्छे से सोच के बताइएगा। ये राजा अंसारी जी बताइए आप क्या चाह रहे जी हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर Thank you, मैं ma'am. फर्स्ट टाइम इंट्रो देना चाह रहा हूँ। मैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से हूँ सर। हाँ, बताइए। सर मेरा नाम इंतज़ार अंसारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। यस। और मैं पीआरटी के लिए सर एलिजिबल हुआ हूँ और मैंने अभी बीएससी बीटीसी और सीटेट में फर्स्ट और मतलब पीआरटी और जूनियर दोनों में क्वालिफाई किया है। और मेरी अचीवमेंट है सर, अभी मैंने दीक्षा से और दीक्षा में अभी ट्रेनिंग हुई थी वो मैंने कंप्लीट की है एफएलएन। और मेरा एक चैनल भी है जिसमें मैं बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव, और सर मैंने जो आपको भी थंबनेल प्रोवाइड किए थे सर, वो अगर आपको अच्छे लगे हो तो। अच्छा तुम इंतजार अंसारी बोल रहे हो क्या। इंतजार अंसारी बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम अभी सर। हाँ मैं राजा अंसारी देखा था। हाँ, चलो मैं बता दूं सभी दर्शकों को, हमारे इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं और बहुत सारे करीब 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो अभी साथ में हमारे साथी है इंतजार अंसारी जी, बहुत देर से वेट भी कर रहे थे। इन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस के थंबनेल बनाए हैं, कुछ मेरे बच्चे ने बनाए हैं। इसके अलावा मुझे कुछ आता जाता इतना है नहीं, और मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड नहीं हुई इस टेक्निकली उस चीज़ में। तो मैं तो केवल बस शौक़ से आप लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा था, लेकिन इन्होंने जब थोड़ी सी हेल्प की और इंतजार अंसारी जी ने मुझे काफ़ी इनके शब्दों से, इनके विचारों से इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट किया, तो मैं बीच में और ज़्यादा क्लासेस लेने लगा। तो थैंक यू वेरी मच अंसारी जी। बताइए और क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सर मैं बच्चों, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहता हूँ। उन्हें मतलब इंगेज करने के लिए किसी ना किसी तरीके से रिमेडियल क्लास या मेरा कोई भी फ्री पीरियड या इंटरवल, तो इसमें भी मैं बच्चों को अपनी तरफ इंगेज करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके उनके लिए ही, और यही मेरा पैशन और यही मेरी पैशन है, नॉट अ प्रोफेशन। यस। और सर ये मेरा अभी फर्स्ट टाइम का भी इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है फिलहाल। अगली बार से प्रिपेयर होके बैठो। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कौन से सब्जेक्ट पीआरटी में आपने दे रहे हो ना। पीआरटी के लिए हूँ। जी जी सर। अच्छा ठीक है। और भी एनसीईआरटी के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सर, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अभी मैंने इसमें 2 सर्टिफिकेट अचीव किया, वो मैंने आपको भेजे भी थे, आपने उसमें देखा भी था। हाँ निष्ठा वाले, एक दीक्षा और एक एफएलएन वाला। ये अभी मैंने 27 से 31 मार्च का एक प्रोग्राम। नहीं अगर आप अचीवमेंट में एफएलएन का बताएंगे ना, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफएलएन। फर्स्ट तो एफएलएन का फुल फॉर्म बताइए, फिर इसका पर्पस क्या है, ये कौन सी एज तक के बच्चों के लिए है, तो आप बताइए थोड़ा इसमें, ये बाकी लोग भी सुन लेंगे। सभी और नाकामी है माना कि। एक मिनट, हाँ अंसारी जी बोल रहे, फिर राम बाबू जी क्या नाम। एफएलएन की सर जो फुल फॉर्म है, रंबू कुमार जी बोलेंगे। न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। और ये हमारे फर्स्ट टू थर्ड के लिए ज़्यादा जोर देता है जो निपुण है। इसमें भी सर मैंने अभी अचीव किया है, और इसके बारे में अभी धीरे धीरे मैं और मतलब क्या नाम है जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ सर इस पर। हाँ निपुण और एफएलएन जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया, वो देखो मैं 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। निपुण, एफएलएन और आपकी बाल वाटिका 2020 एनईपी और एनसीएफ अब नया आ गया है 2023। इनके बारे में जो बेहतर तरीके से समझ लेगा उसका इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशली मैं पीआरटी के लिए बोल रहा हूँ, पीआरटी और टीजीटी बहुत। चलिए आरके राय जी आप हाँ अंसारी जी अभी ये आपके साथ में एक और हैं, इनसे अपन बात करते हैं। ठीक। रामबू कुमार राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बताइए सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले तो, है ना। टेल सम। यस। हाँ मेरा नाम मुकुंद चंद्र राय हुआ। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ।
मेरी 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा क्रमशः 2010 और 2012 में उत्तीर्ण किया हूँ। मैं अपनी स्नातक की परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण किया हूँ। मैं अपनी प्रशिक्षण वर्ष 2019 में उत्तीर्ण किया हूँ और इसी वर्ष के दिसंबर माह में मैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 उत्तीर्ण किया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं बिहार राज्य का केंद्रीय शिक्षक माध्यमिक शिक्षक स्टेट भी उत्तीर्ण किया हूँ। मैं वर्तमान में अभी DAV पब्लिक स्कूल विक्रमगंज में संविदा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी सर बागवानी में और बच्चों को क्लास में छोटी छोटी मोटिवेशन कविताएं, प्रेरित करने वाली कविताएं सुनाना अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, बढ़िया आपने सुनाया। कोई अचीवमेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ का रहा है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आप ब्रजेश जी आपसे भी बात करूँगा मैं। सर लाइट चली गई हमारे यहाँ, लाइट जला के आप देना चाह रहे हैं। हाँ ब्रजेश जी बताइए बताइए। हाँ सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है सर, और मैंने हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड से क्रमशः 2011-2013 में किया है। और सर हमने BA डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से 2016 में उत्तीर्ण किया है। और सर हमने B.Ed डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 2020 में किया है। और सर हमने CTET की परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण किया है सर। ओके ठीक है, अच्छा आपने बताने की कोशिश की हिंदी में, लेकिन ये जो हिंदी में बोल रहे हैं ना बहुत ही जल्दी समाप्त हो रहा है। आप लोग कुछ अचीवमेंट, आपकी कुछ स्ट्रेंथ ये आप उसमें जोड़ें कि आप एक्चुअली आपकी क्या क्या विशेषताएं। देखो जैसे उनने बताया था सर हम हिंदी TGT से हैं। हाँ अरे TGT हिंदी है, फिर भी भैया देखो आपके अंदर धैर्य, सहन शक्ति, आपका मतलब स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आप कौन सी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, आपके गुण क्या है, मतलब ऐसी चीज़ बताइए जो केंद्रीय विद्यालय में काम आने वाली हो। ठीक है ना। जैसे ये बता रहे हैं कि मैं अभी अंसारी जी ने बताया कि मैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ, बच्चों के साथ जुड़ना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों के लिए काम करना अच्छा लगता है ना। तो आई लव द चिल्ड्रन। और ये जो चीज़ है कि जिस तरह बच्चे अनकंडीशनल लव करते हैं, हम भी बच्चों को चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू लेने वाला आपसे सुनना चाहता है। आप कोशिश करो कि अपने अचीवमेंट और अपने गुणों के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में वही चीज़ बताएं जो उनको लगता है कि ये अच्छी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए उपयोगी है, तो उसका उल्लेख आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए निशा मैडम, आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, आ जाइए। फिर इसके सर हमें भी अपना देना है। हाँ आपको मुझे भी देना है। अमृता अवस्थी मैडम, हाँ बिल्कुल, आप निशा मैडम से मैं बात कर लूँ 1 मिनट, उसके बाद आपको। चलिए निशा मैडम बोलिए जल्दी से। आपका माइक अनम्यूट करो पहले तो। सर इसके बाद मेरा ले लीजिए सर। कोड किसका ले लें? मुझे अंबिका कुमारी सर। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए अब अपना सर आप मैम का ले लीजिए, मेरा बेटा उठ गया है, मैं उसको सुला लूँ पहले। ठीक है, आप आराम से सुला लीजिए, हम बाद में भी ले लेंगे आपका। चलिए अंबिका कुमारी जी मैडम, आपकी किस्मत और अच्छे हैं। और उसके पहले अमृता अवस्थी मैडम, अंबिका कुमारी, उसके बाद हम देव ज्योति से भी बात करेंगे। ठीक है सर, मुझे भी देना है। हाँ आपको भी ले लेंगे, अब मेरा भी टाइम हो रहा है। लेकिन चलिए अमृता अवस्थी आप बोलिए फटाफट। क्या आपका नाम अमृता अवस्थी है क्या? हाँ सर, अमृता कुमारी है, शादी अवस्थी में हुई तो अमृता अवस्थी। चलो ओके बताइए। टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू वांट टू से। प्रणाम सर। यस सर, सबसे पहले मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जैसे सम्मानित सदस्यों के सामने मुझे अपना परिचय देने। थोड़ी सी आवाज़ तेज आपका, ये शायद कहीं न कहीं गड़बड़ लग रहा है। सर धीमी आ रही है आवाज़? हाँ अब आ रही है, थोड़ा सा उसको आप ऐसे और ऊपर रखेंगे तो अच्छी आएगी शायद। अच्छा ठीक है। सर सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जैसे सम्मानित सदस्यों के सामने मुझे अपना परिचय देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम अमृता मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की निवासिनी हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल उत्तर प्रदेश बोर्ड से तथा इंटर उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण किया है।
तत्पश्चात मैंने अपना स्नातक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। शिक्षा क्षेत्र में रुचि होने के कारण मैंने अपना शिक्षा स्नातक छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया है। सर, मैं एक परिश्रमी, आत्मविश्वासी और धैर्यशील महिला हूँ तथा मेरी रुचि भारतीय पारंपरिक पाक कला तथा कविता गायन में है। सर, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं बच्चों से भावनात्मक रूप से अच्छी तरह जुड़ पाती हूँ तथा अपनी बातों को बच्चों तक सहजता से पहुँचा पाती हूँ। धन्यवाद सर। बढ़िया, आपने अच्छा हिंदी भाषा में जो बताया। कौन से सब्जेक्ट के पीआरटी के लिए है क्या आपका? सर, टीजीटी हिंदी है मेरा। हाँ, तो आपने बढ़िया बताया। आपका जो शब्दावली थी अच्छी थी, और इसमें कुछ और हम जोड़ेंगे घटाएंगे बता देंगे। अंबिका कुमारी जी, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं? टीजीटी हिंदी हूँ सर। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए बताइए, आप भी अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम अंबिका कुमारी है, मैं धनबाद झारखंड से आई हूँ। मैंने अपना स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2019 में पूर्ण किया और शिक्षा में स्नातक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से 2020 में पूर्ण किया। इसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ संविदा शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान कक्षा अध्यापिका के रूप में वर्ग संचालन एवं विविध प्रकार के बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार और समन्वय मैंने स्थापित किया। सर, इसके अतिरिक्त अगर मैं अपनी रुचि की बात करूं तो मुझे अपनी अभिव्यक्तियों को कविताओं के माध्यम से व्यक्त करना अच्छा लगता है एवं लोकगीत और देशभक्ति गीत इत्यादि गाना भी मुझे पसंद है। मैं संयुक्त परिवार से संबंध रखती हूँ सर। पिछले 9 साल से विवाहित हूँ और 7 साल की मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। और मैंने अपने परिवार में समय का संचालन करना एवं विविध आयु वर्ग के व्यक्तियों के साथ समन्वय और सहयोग की भावना रखना सीखा है। मैं सदैव अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहती हूँ और मैंने अपने जीवन के अनुभवों में यह महसूस किया है कि विपरीत परिस्थितियों में मेरा व्यवहार आशावादी बना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने परिचय को विराम देती हूँ सर। धन्यवाद। अच्छा, आपके 2 चीज़ों पे आपसे बात करना है। एक तो विपरीत परिस्थितियों में आपका व्यवहार आशावादी बना रहता है, तो मतलब आपकी देवरानी वगैरह जेठानी देवरानी नहीं है क्या? नहीं सर, मैं ही बड़ी हूँ अभी और मेरे अभी देवर की शादी नहीं हुई है। अरे वाह, चलो अभी तब तक आगे विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि आपने एक सेंटेंस बोला था कि मैं अपनी अभिव्यक्तियों को कविताओं के माध्यम से प्रकट कर, तो उसमें अभिव्यक्ति शब्द ठीक नहीं है। कविताओं के माध्यम से विचार ही तो अभिव्यक्त करते हैं, फिर अपन अभिव्यक्तियों को लिख करके आगे बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। बाकी आपकी शब्दावली इसको सर कैसे बोल सकते हैं, या सीधा बोल दें कि भाई अभिव्यक्तियों को कविताएं लिखना? अरे अभिव्यक्तियों की जगह आप बोलो ना अपनी विचारों को, भावनाओं को मैं कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करती हूँ। ठीक है ना? जी। थैंक यू सर। क्योंकि अपने आप में अभिव्यक्ति कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सा आप सुधार लें। और आपकी शब्दावली बढ़िया है। अपन परिवार वाली और बाकी सब बातें उनके पूछने पर करें, क्योंकि वो आपके परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ के स्कूल से कितना अटैच रहे। जी तो, सर मैं ये यहाँ पे दर्शाना चाह रही थी कि परिवार में होते हुए मैंने क्या चीज़ें मैंने सीखी है जो विद्यालय के काम आ सकती है। इसलिए मैंने इन सभी चीजों को यहाँ पर जोड़ा है। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ या? लेकिन इसके बारे में वो क्वेश्चन करेंगे तब बताना। अभी श्वेता गुप्ता कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। है ना? आप बढ़िया रहा अंबिका जी, और मैं बताऊंगा आगे, गाइड करूंगा आपको। है ना? ओके सर। जब हम टीजीटी इंटरव्यू का हिंदी का 1-2 दिन में कल हम टीजीटी बीजीटी हिंदी का साक्षात्कार भी लेंगे। आज तो समय लेट हो गया है। श्वेता गुप्ता इज लास्ट कैंडिडेट, क्योंकि अब समय नहीं हो रहा है, बच रहा है। और देवज्योति को और एक बार हम बात कर लेंगे। श्वेता 1 मिनट, देवज्योति बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो ये बोलेंगे ये सर बार बार महिलाओं को आमंत्रित करते। बताओ, ऐसा एक बार यूट्यूब पे 1-2 ने ऐसे कमेंट कर दिए तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। देवज्योति बोलो। यस सर। यस, गुड इवनिंग।
you for giving me this opportunity to introduce myself. Sir, my name is Devajyoti Dev. I was born and brought up at Silchar, Assam, but currently I'm residing at Kohima, the capital of Nagaland. About my educational qualification, I have done my schooling from Judhishthir Shaha Higher Secondary School. After that, I have completed my bachelor and masters of visual arts in painting at Assam University. आप आर्ट एजुकेशन का इंटरव्यू देने वाले हैं क्या? हाँ सर, Very art good, education. Sir, about my work experience, yes, I have working experience of teaching at JNV for more than 2 years, and after that I have started working as a PGTR at Kohima itself. About my achievement, I have participated in a national level art workshop at NEZCC Dimapur with the collaboration of Ministry of Culture, Government of India. Apart from this, sir, I have done many group exhibitions and workshops as well. Now talking about my strength is my patience, my enthusiasm, and my willpower that I never gave up with any situation. If I talk about my hobbies are singing. I like playing cricket and gardening. That's all about this. Thank you. ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने भी बहुत अच्छा परिचय दिया। आपकी जो लैंग्वेज थी, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस था, दैट्स आर गुड, है ना। यही भाषा जो है, यही आपकी ताकत है, समझिए आप। और इसको और थोड़ा मुझे अच्छे से बना के भेजिए वीडियोस, और देखते हैं। श्वेता, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। यस, गुड इवनिंग। मैं अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। ओके ओके, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आवाज कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, एक आवाज नहीं आ रही क्लियर। Am I audible? ठीक से नहीं ऑडिबल, मतलब आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है, कुछ कट के आ रही है, कट के। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है अभी। Good evening, sir. My name is Shweta Gupta. I am the daughter of Mr. Sudarshan Gupta and Mrs. Manju Gupta. I live in the heart of Rajasthan, Ajmer, and I have done BSc from Government College Ajmer in 2014. After that, I completed MSc in Mathematics from Central University of Rajasthan in 2016. Then I have done B.Ed from Institute of Advanced Studies in Education, Ajmer in 2019. I qualified CTET examination, both paper, in 2019 during B.Ed, and again qualified CTET examination in 2021. I also qualified REET examination, and I have a computer diploma, which is RSCIT, and I have some knowledge about programming in C and LaTeX, and my hobbies is to playing badminton and making mehendi and rangoli, cooking and dancing. And I want to become a teacher since from childhood, and I am a self-motivated person. So this is all about me. If you have any query, then thank you, sir. ओके, नाइस। यशपाल जी, अपना मोबाइल की सेटिंग थोड़ी ठीक कर लो और फिर आप बताओ। ओके, श्वेता, आपने बढ़िया बोला। अभी बताइए, आपने रीड क्लियर किया हुआ है? एक सेकंड, बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, बाकी लोग अपना माइक ऑफ करें। करना किसी का। एमडी राजा जी, ये राजा सर का, एमडी मोहम्मद राजा। यस, अभी थोड़ा सा ठीक है। श्वेता, बताइए, आप किस पोस्ट के लिए हैं? सर, पीजीटी मैथमेटिक्स। ओ, पीजीटी मैथ्स। तो जब हमने आज पीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू लिया तब नहीं थी क्या? सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कब था? नहीं, मैंने पीजीटी मैथ्स ग्रुप में गूगल मीट का भेजा था, सभी में तो भेजा था। चलो कोई बात नहीं, उसको देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। और फिर अभी तुम्हें देना है तो कल दे देना। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे और कुछ मैंने इंडिकेशन दिया है अगले इंटरव्यू के लिए, वो देख लेना है ना। ओके, तो कल दे सकते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना। सर, इंडिविजुअल लिया जाएगा क्या इंटरव्यू? इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल ले लेंगे,
पर होता क्या है कि जब मैं इंडिविजुअल को लिंक भेजता हूँ तो वो ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर मैं इंडिविजुअल की वजह। जी सर, टाइमिंग बता देंगे तो सर हो जाएगा। हाँ, टाइमिंग देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आफ्टर 8 o'clock ही मैं ये सर्विस दे पाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि तब तक मैं 5-6 बजे तक तो मैं थका हुआ आता हूँ ऑफिस से, और उसके बाद मुझे जितना समय मिलता है उतना मैं थोड़ा सा अपना खान पान करके डिनर करके फिर मैं ये काम शुरू करता हूँ, है ना। ओके ओके, ये जो है अंबिका कुमारी मैडम का शायद माइक ओपन है। हाँ अभी ठीक है, और भी किसी का अगर माइक ओपन है तो प्लीज़, है ना। ओके ओके ठीक है। देवज्योति देव, आप एक ध्यान रखना, मैंने आर्ट एजुकेशन के 2-3 इंटरव्यू लिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और डिटेल बताया हुआ है, फिर भी और मैं आप लोग आपके आगे गाइड करूँगा। ये बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी का, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस होता है। माइक कई लोगों का खुला हुआ है, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। श्वेता मैडम का खुला हुआ है। ओके, कुमारी प्रियंका प्लीज़ बताइए आप क्या चाह रही हैं बोलना। यस सर, मैं भी इंटरव्यू देना चाहती हूँ। हाँ, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हाँ, सब्जेक्ट चलो, आप कौन सी पोस्ट के लिए? पीआरटी के लिए सर। ओके, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Good evening, sir. My name is Kumari Priyanka. I am from Pakur, Jharkhand. Pakur is famous for its black stone. It is generating the highest revenue for Howrah Railway Division by supplying black stone chips across India. I have completed my BSc, MSc and B.Ed from SKM University, Dumka. I have cleared CTET level 1 and level 2 and also Jharkhand TED. I am working in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Pakur from past 3 years. I am hardworking and punctual. I love to play with kids. That's all about me. Thank you, sir. Okay, very nice, very short and good interview, good introduction given by you. And some more your strength you may add in your any achievements have you, then you have to add. And what's your achievement in the school life and other any competition you have faced and win. तो आपने अगर कोई भी ऐसा अचीवमेंट है आपका स्कूल लाइफ का, बाद का, एज ए टीचर 3-4 साल से हो, आपने कुछ बढ़िया उसमें कुछ किया हो, ऐसा कोई काम जिस पे आपको कोई पुरस्कार मिला हो, तो उसको आप कहीं ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जैसे सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ साइंस एग्जीबिशन वगैरह होता है, तो उसमें मैंने जैसे कुछ भी मिला है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हो आई एम एबल टू कंडक्ट साइंस एग्जीबिशन फॉर स्टूडेंट्स एट स्कूल लेवल एंड आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड इन दैट स्कूल एंड आई हैव गॉट एप्रिसिएशन लेटर फॉर दिस। ऐसे करके आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, अभी देखो सब लोगों का हो गया, मेरा समय भी हो रहा है, लेकिन ये हैंड रेज हो रहे हैं बहुत सारे, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सवाल था सर, पीजीटी बायोलॉजी के लिए कब मॉक इंटरव्यू लेंगे आप? कल ले लेंगे, चलो, है ना। एसके गुप्ता जी, आप एक सवाल था, 1 मिनट, एक शंका थी। हेलो सर, नमस्कार। 1 मिनट, शंका किसकी है? सर मैं विमल कुमार, राजस्थान। सर मैं केंद्रीय विद्यालय बड़वा से हूँ। सर मुझे एनओसी से संबंधित कुछ जानकारी लेनी थी। हाँ यार, ये सबकी प्रॉब्लम है यार, सब प्रिंसिपलों को घेरे हुए हैं एनओसी के लिए। आपको तो शंका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोपाल रीजन में असिस्टेंट कमिश्नर रानी डांगे मैडम ने एक लेटर सर्कुलेट किया है, वो पढ़ा होगा ना तुमने? हाँ सर, वो पढ़ा था, लेकिन उसमें एक ऊपर एक पंक्ति दे रखी है, सीमित विभागीय परीक्षा, LDCE। हाँ, LDE के कैंडिडेट, और फिर ये पोस्ट दे रखी है कि इनके लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। तो बाकी और जैसे संपर्क किया दिल्ली रीजन में, इधर भुवनेश्वर में, तो वो लोगों ने अपना डाटा प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवा के आरओ भेजा है। तो ये डाउट था कि मतलब एक रूपता हो, मतलब क्या? देखो सुनो, आप ध्यान से सुन लो, मैं भी जब प्रिंसिपल बना तो सेम प्रॉब्लम जो आज आप आए मुझे भी आई थी, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रीजनल ऑफिस भेज दी, और आज तक उसका एनओसी नहीं मिला, लेकिन मुझे 11 साल एज ए प्रिंसिपल हो गए, ठीक है ना। तो जो अपने विभाग का ही कैंडिडेट होता है ना,
उसको एनओसी की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि केवी तो खुद चाहता है ना कि आपका एनओसी की प्रॉब्लम तो तब होती जब आपने आवेदन दिया था। आपने जो आवेदन दिया है, आवेदन को फॉरवर्ड किया गया है और आप सिलेक्ट हो गए हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए जो आप सूचना देंगे, एप्लीकेशन देंगे, वो भी अपने आप में एनओसी की तरह ही होता है। हालांकि फिर भी ये एनओसी के लिए मैं हमारे कल रीजनल ऑफिस में एक बार और बात कर लूँगा कि भाई सब कैंडिडेट इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो जो रिप्लाई देंगे उसको हम आपको बता देंगे। लेकिन जनरली आपको इसके लिए थोड़ा सा भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना कि मुझे ये एनओसी चाहिए और मैं ये एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और उसकी रिसिप्ट लेना, ये ही अपने आप में काफ़ी है। ठीक है ना जी सर। ओके थैंक यू। और भाई ये विमल राजस्थानी जी, आप जब जुड़े हुए हो देख रहे हो तो यार मध्य प्रदेश में आपके जितने भी ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो कुछ भी है, कुछ अच्छा लगता है तो उसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि मुझसे एमपी के लोग कम जुड़े हैं, बाकी सब स्टेट के ज़्यादा जुड़े हैं। नियर अबाउट मैंने एक दिन किया तो करीब 23 स्टेट के टीचर्स जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के पता नहीं कि मुझसे नाराज समझ में नहीं आता। ठीक है ना? नहीं बिल्कुल सर, मैं साझा करूँगा आगे। ओके ठीक है, थैंक यू। चलो साक्षी मैडम है और मीना रानी मैडम है, कुछ पूछना है आपको? पहले एसके गुप्ता जी बताइए, आप क्या बोल? हाँ हेलो सर, नमस्कार। यस सर, मेरा नाम जो है आर्ट टीचर के लिए जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है, तो सर हम आपसे कुछ पूछना ये चाह रहे थे। आपने मुझे आपका डिटेल भेजा है कि आर्ट इंटरव्यू के लिए? सर अभी नहीं भेजा है, सर भेज देंगे। हम आपसे सर आज पहली बार जुड़ रहे हैं। चलो सर, हमें आपसे ये पूछना था कि सर इंट्रो इंग्लिश में देना मतलब सर जरूरी है या हिंदी में भी दे सकते हैं, या सर हमारा इंटरव्यू हिंदी में होगा या सर इंग्लिश में होगा? इंट्रो इंग्लिश में देना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश काम चलाऊ आना चाहिए। ठीक है ना? उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश इज़ मस्ट। और आर्ट एजुकेशन जो टीचर होता है, म्यूज़िक टीचर होता है, डब्ल्यू जो होता है, या और ये जो होते हैं, ये लोगों को तो ज़्यादातर अपनी ही भाषा बोलना पड़ती है। ठीक है ना? और हिंदी में ही ये ज़्यादातर बोलते हैं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो अब इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक बात पर ध्यान दें कि आर्ट से, एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएँ। कल मैं कोशिश करूंगा आर्ट एजुकेशन का इंटरव्यू लूँ, आप डिटेल भेज देना। तो आपको तैयारी क्या करना है, आर्ट एजुकेशन वालों को क्या आना चाहिए, मैं थोड़ा सा ये इंडिकेट कर देता हूँ। एक तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसमें आप आर्ट एजुकेशन वाले क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि कई केंद्रीय विद्यालयों में आर्ट एजुकेशन टीचर ने किया हुआ है। ठीक है ना? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो आप विभिन्न बच्चों के विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किस किस प्रकार के चित्र और क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं स्कूल बिल्डिंग में, टॉयलेट्स में, बरामदों में, सब जगह। एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाला कॉन्सेप्ट का, 1। दूसरा, बच्चों को आपका जो आर्ट एजुकेशन का सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो चित्रकला है इसके माध्यम से अदर सब्जेक्ट को आप कैसे मतलब इंटरकनेक्ट करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना? आप किसी पक्षी का चित्र बना रहे हो तो उसका मुंह हाफ सर्कल की तरह बना दिया जाता है, एक रेक्टेंगल शेप बना देते हैं, फिर नीचे कुछ वो त्रिभुज टाइप उसके पैर बना देते हैं। तो उसमें मैथमेटिकल शेप्स का कितना यूज़ होता है बच्चों को ये छोटी छोटी स्टार्टिंग की आर्ट सिखाने में। तो इसके माध्यम से बच्चे वो इंटरकनेक्टेड होंगे मैथमेटिकल शेप्स के साथ में। जब एक आर्ट टीचर पढ़ाता है तो कहीं वो एसएसटी से रिलेट कर देता है अपनी चीज़ों को, कभी मैथ से कर देता है, कभी वो पौधा बना रहा है, पेड़ लगा रहा है, फल लगा रहा है, तो वो साइंस से, बायोलॉजी से, ईवीएस से इंटरकनेक्ट हो जाता है। तो आपके सब्जेक्ट की इंटरकनेक्टिविटी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के साथ बहुत बढ़िया रहती है। तो आर्ट एजुकेशन टीचर इस तरह का जब काम करता है तो बाकी सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड होके ऑलरेडी बच्चे के मजबूत बनते हैं।
और दूसरा देखो, आर्ट जो है आपको रंगों के बारे में, पेंट्स के बारे में, कलर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में जो चित्रकारिता है, चित्रकला है, पेंटिंग है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य के भावनाओं को चित्रों में कैसे उकेरा जा सकता है, कल्पनाओं को चित्र का आकार कैसे दिया जाता है, मनुष्य के विचार और अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम एक चित्र कैसे हो सकता है, मॉरल वैल्यूज़, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, सारी चीज़ें चित्रों में कैसे काम करती है ना। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस है, अगर पूछे जाएंगे तो इस पर पे आप अपना थोड़ा सा करके रखिए। फिर भारत के जो मशहूर चित्रकार हुए, चाहे राजा वर्मा हो, चाहे सैयद हैदर रज़ा हो, चाहे मासूम रज़ा हो, रज़ा सूज़ा और ये हुसैन वगैरह जो हुए हैं, और भी बहुत सारे जो चित्रकार हैं, अभी जो लेटेस्ट आधुनिक चित्रकार है जिनकी बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती है, इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। आप मुझे अपना डिटेल भेज देना, क्या क्या जानकारी आपको है, कल हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। जी सर। सर टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग वही यार 7-8 बजे बाद ही मैं कर पाऊंगा, सब बात है ना। ठीक सर, थैंक यू। सर नेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सर? कैसे? सर यूजीसी नेट से सर। हाँ, आप बताओगे, मैंने यूजीसी नेट किया है तो उससे रिलेटेड, उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे लेकिन, ठीक है ना। ओके सर, क्योंकि सर टीजीटी के लिए अप्लाई किया है और फिर सर नेट क्वालिफाई बताते हैं तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत पूछेंगे। आपका नेट का सिलेबस कुछ हो तो मुझे पीडीएफ भेज देना, मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो ओके, अभी हो गए। अब आप ये बताइए, साक्षी मैडम, मीना रानी, यशपाल सिंह, आप में से। यस सर, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सर। हाँ चलो बताइए, जल्दी से बताइए। Sir, my name is Meena Kumari. I belong to Panipat, Haryana. That is known as a city of weavers. And as my qualification are, I have completed my schooling from Johar Navodaya Vidyalaya and done my graduation and Bachelor of Education from District College, Kanya Gurukul College of Education, Sadipur, Julana. And after that, I have qualified both Central Teacher Eligibility Test and also qualified Haryana Teacher Eligibility Test. And sir, now I am a homemaker and I did my study along with my family responsibilities, and after that I got a chance to reach in front of you. And sir, I know if I get this opportunity, I definitely can prove myself. Sir, I am KVS is a best platform for me, and I am eagerly waiting for this opportunity. And my strength are I am hardworking and adopt myself according to situation. And my hobbies are teaching and playing with kids. थैंक यू सर। ओके, आपने जो इंग्लिश में परिचय दिया, इसमें बार बार जब IM का यूज़ किया है ना, तो वहाँ कुछ जगह पे केवल M का यूज़ होगा, बाकी जगह केवल I लगेगा। आई नो, ठीक है ना, IM नो नहीं होता है। तो आप ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक बार देख लेना, लिख के देख लेना, फिर से बढ़िया से एक इंट्रो करके बना करके मुझे भेज देना, ठीक है ना। यस सर, यस सर। ओके, साक्षी मैडम आप बताइए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि जो हमारी मास्टर्स के टाइम पे सब्जेक्ट थे हमारे पास केमिस्ट्री में, तो उनमें से कुछ पार्ट अभी जो +2 और +1 लेवल पे वो नहीं है, तो उससे अभी काफ़ी साल हो गए हैं, उससे टच में नहीं हूँ मैं भी, तो क्या वो पार्ट हमारे इंटरव्यू में इंक्लूड होगा? जो अभी है उसकी बात कर रही है ना, उस समय जो थे उससे मतलब नहीं है। अभी जो पार्ट इंक्लूड है क्लास 11-12 में, वो सिलेबस, वो टॉपिक्स, वो प्रैक्टिकल के टॉपिक्स, वो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए और उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हैं क्या? जी सर, जी है ना। तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन अच्छे से करना है। स्पेशली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम होती है, कुछ खास जो रिएक्शन है, बेंजीन रिएक्शन, गोल्वे रिएक्शन, और भी बहुत सारी जो आपकी जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं 10, 11, 12 लेवल पे,
उनमें कौन जी। कौन से केमिकल्स की, कौन कौन से आइटम्स, इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत लेबोरेटरी में होती है, तो उस पर पूछे जा सकते हैं। और आप लैब का उपयोग कब कब कैसे कैसे करेंगे, कितना इंटरेक्टिव वे में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लैब के ऊपर ध्यान देंगे, लैब और बच्चों की प्रैक्टिकल टीचिंग करवाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका साक्षात्कार जाएगा। उससे रिलेटेड चीज़ें आप रखिए, क्योंकि ज़्यादातर साइंस टीचर भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, क्लासरूम से बाहर नहीं जाते हैं। क्लासरूम जी। में भी जाते हैं तो चॉक एंड टॉक ही यूज़ करते हैं, है ना। जी, जी। उनके ना कोई TLM, ना कोई विशेष चीज़, मतलब पढ़ाई को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, पढ़ाई को मतलब बिल्कुल ऐसे बना के रख दिया जैसे कि बच्चे का कोई अधिकार ही नहीं है। बिना प्रयोगशाला में ले जाए आप बच्चे को साइंस नहीं पढ़ा सकते। आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है वो सब, आप साइंस को लेक्चर मेथड से थोड़ी पढ़ाया जाता है। आप साइंस में चाहे बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आए, लेकिन अगर उस बच्चे के सामने अगर आपने 4 केमिकल पाउडर रख दिए, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, या कार्बाइड हो, या और भी कुछ हो, और वो बच्चा उसको पहचान के डिफरेंट नहीं कर पाए, तो क्या मतलब है। वो इक्वेशन को रट लेना, केमिकल इक्वेशंस को, और उसको बैलेंस बनाना सीख जाना, इट्स नॉट द टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री, है ना। जब तक कि प्रैक्टिकली वो केमिकल का यूज़ करके ना देखें, ठीक है ना। एक MSc केमिस्ट्री की हुई लड़की जब किसी सुनार की दुकान पे जाती है सोनी के यहाँ, और वो अपने पाइजेब और अपने ऑर्नामेंट देती है सिल्वर के कि इसे आप काले हो गए उजाल दीजिए, ठीक है ना। और उसने कभी केमिस्ट्री में उसको मालूम है थ्योरी में कि ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये शोरा का तेजाब होता है, ये पाउडर होता है, ऐसे ऐसे यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने कभी यूज़ करके उस लड़की ने देखा नहीं है, उसने प्रैक्टिकल नहीं किया है। और वो जो सोनी या जो उजालने वाला सुनार है, उसको स्पेलिंग भी नहीं मालूम है, H2SO4 क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसे ये मालूम है, वो पहचान रखता है कि ये पाउडर कौन सा है, ये तेज़ाब कौन सा है, ये एसिड कौन सा है। वो उस लड़की के ऑर्नामेंट को उसमें डालता है बढ़िया से, उसको फिर निकाल के उस पाउडर में डालता है, जिसमें वो ब्रश उन्हें करता है, और वो खुशी खुशी 200-400 रुपये दे करके चली जाती है। बाद में कॉपर की राड या कॉपर का लोटा वो जो सोनी डालता है उस एसिड में, तो वो जो डिज़ोल्व हो गई है उसकी सिल्वर, उस दौरान उस सिल्वर को कलेक्ट कर लेता है, और 10-20 ग्राम सिल्वर एक ग्राहक से कलेक्ट हो गई तो शाम तक 100 ग्राम सिल्वर को बाज़ार में ले जाके 5-10 हज़ार रुपये ले आता है। मतलब पढ़ाई किसने की, MSc केमिस्ट्री किसने की, और उसको इम्प्लीमेंट करके लाभ किसने उठाया। तो बच्चों को आप जब तक प्रैक्टिकल सिखाएंगे नहीं, तब तक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आएगा, लेकिन वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा, और लर्निंग आउटकम्स उसके कभी इंश्योर नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, इस पे बताना है, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो ओके, फिर हम जब इंटरव्यू लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को है? सर मेरा 15 को है, भुवनेश्वर में। अच्छा, आप कहाँ से हो वैसे? सर मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। अच्छा, तो वहाँ से इधर आएंगे, चलो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप आए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है ना। ईश्वर करे आप सिलेक्ट हो जाओ तो याद जरूर करना। ओके जी जी सर, बिल्कुल, है ना। अभी जो हम गूगल मीट ले रहे हैं, मैं किसी को भी पर्सनली जानता नहीं हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है, और जो भी आता है वो हम कोशिश करते हैं उसकी हेल्प कर पाएँ, जी है जी, ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। यशपाल जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते सर। मैं TGT SST से सर जी हूँ। 24 मई को इंटरव्यू डेट है सर। हाँ अभी टाइम है, 1-2 बार इंटरव्यू ले लेंगे आपका ना। ठीक 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 बिल्कुल। आप SST में हैं तो SST का सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये समझिए कि उस SST के सिलेबस में आप बच्चों का जो एजुकेशनल टूर होता है वो कौन कौन से स्थान का उपयुक्त रहेगा, जिसका टूर करने से बच्चों को लाइव लर्निंग हो। एक तो ये ध्यान रखिए, और SST के कौन कौन से पार्ट है जो एक्चुअल हमारे सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं, जिनको आप बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे।
चाहे वो चुनाव प्रणाली हो, पंचायती राज हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बातें हो, स्कूल से जुड़ी हुई बातें हो, शिक्षा से जुड़ी हुई बात हो, ग्रामीण विकास वाली हो, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के और पॉलिटिकल साइंस के जिसको हम बच्चों से लाइवली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यार अब हो गया बहुत, 11:30 बज गए, मैं सुबह टाइम पे उठ नहीं पाऊँगा, है ना। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अब यहीं पर विदा लेते। कल फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के 2-4 विषय का इंटरव्यू लूँ। काफ़ी कुछ गाइड मैंने आप लोगों को करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।